Assalamu alaikum. Let's start. Paper 1 of multiple choice, O-level chemistry, October-November 2024, variance 11. In question number 1, which row shows both a property of a gas and the correct explanation for this property? So property है हमारे पास gases flow easily. So अगर gases flow करती हैं from one place to another place, the bonds within the molecule are weak. Not at all. That's an incorrect explanation. Because अगर मेरे पास क्लोरीन गैस है फॉर इंस्टेंस और ये फ्लो करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो ऑब्वियसली वो इसलिए फ्लो करेगी क्योंकि जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो वीक होती हैं, नॉट द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल. ओके, सो टेक्निकली यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से गैसेस का फ्लो इजीली होता है. सो जो बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, बॉन्ड्स नहीं है, वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इंटरमोलेकुलर फोर्सेस. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, the pressure of the sample of the gas increases when the volume is decreased. That's a true statement because इसके ऊपर हम Boyle's law apply कर रहे हैं. Boyle's law is basically volume is inversely proportional to pressure. So अगर आप pressure volume decrease कर रहे हैं तो ultimately pressure increase होगा. तो ये statement बिल्कुल ठीक है. The particles collide more frequently. Obviously जब pressure increase होता है तो particles जो हैं वो आपस में frequently collide करते हैं and with the walls of the container. So that's a very very true sort of a statement, because we have done this statement in kinetic particle theory also. Okay, so both the statements are correct and therefore B is going to be the right answer. All right, next, option C dekh lo. The volume of a sample of a gas increases when temperature is increased. That's a very very true statement because ये Charles law को represent कर रहा है, in which volume is directly proportional to temperature. So higher the temperature, higher the volume. और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है the particles in the gas are far apart. ये एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इसलिए क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है, स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस. सो बेसिकली ये पूरा स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन में आना चाहिए, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, व्हिच इज व्हाई ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. सो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे ऑप्शन को. सो सी इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी देखिए, द स्प्रेड ऑफ परफ्यूम पार्टिकल्स इज ड्यू टू डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन is the movement of particle from an area of low concentration to a area. Diffusion is a process in which movement of particles takes place from a region of higher concentration to a region of low concentration. So ये statement reverse लिखा हुआ है, which is why this statement is incorrect also. So option D is also incorrect. When measured under the same conditions of temperature and pressure, which gas diffuses at the same rate as nitrogen? First of all, take out the AMR of nitrogen. Nitrogen has a mass of 14. We have 2 atoms, so into 2. So AMR is going to be 28. Now, अगर वो कह रहे हैं सेम रेट के साथ होगा, तो सेम रेट के साथ उसी वक्त होगा जब सेम मॉलिक्यूलर मास मिलेगा हमें, यानी सेम एमआर. अब सेम एमआर हमने देखना है तो हमें तमाम गैसेस का एमआर कैलकुलेट करना है. द एमआर ऑफ अमोनिया इज 17, द एमआर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 28, द एमआर ऑफ इथेन इज 30, द एमआर ऑफ ऑक्सीजन इज 32 आई बिलीव. ओके, तो सेम एमआर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड में मिल रहा है, विच इज वाई B is going to be the right answer, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होगा. X and Y are both elements, one of which is non-metal. अब इसमें से कौन सा मेटल है कौन सा नॉन-मेटल ये कंफर्म नहीं है हमें, ठीक है, बट ये कह रहे हैं कि one of which is non-metal. ओके, one of which is non-metal. फिर वो आपसे कह रहे हैं कि 1 mole of X is added to 1 mole of Y and they are heated together. ठीक है, X और Y आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और जब X और Y आपस में रिएक्शन करेंगे कंप्लीटली तो सब्सटेंस Z फॉर्म करेंगे. तो ठीक है, ये X और ये Y दोनों 1:1 की रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहे हैं Z में. नाउ द नेक्स्ट इज सब्सटेंस Z कैन नॉट इजीली बी सेपरेटेड टू फॉर्म X एंड Y.
ठीक है, ये भी ठीक है स्टेटमेंट. Three statements are given. Y must be the non-metal. Must be the non-metal is actually not confirmed actually, because uh, X भी तो नॉन मेटल हो सकता है, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर ने हमें कोई इंस्ट्रक्शन क्लियर कट नहीं दी थी. सो नॉट कंफर्म. प्रॉपरली, ठीक है, तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. X एंड Y फॉर्म अ कंपाउंड ऑन हीटिंग. बिल्कुल सही बात है. ये जो X और Y है, ये आपस में रिएक्शन करके Z बना रहे हैं. ये जो Z है, ये टेक्निकली XY होगा और ये टेक्निकली ये कंपाउंड होगा. सो ये कंपाउंड की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट, व्हिच इज व्हाई इट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज सब्सटेंस Z हैज द एम्पिरिकल फार्मूला XY. तो ये जो सब्सटेंस Z बना है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला XY तो होगा, क्योंकि ये X और Y से मिलकर ही बन रहा था. सो ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी 2 and 3. An ion has the electronic configuration of 288. ये जो ion है, it could be cation, it could be anion, but अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है it has a 2 minus charge. इसका मतलब it must be an anion, ठीक है. और अगर ये anion है तो इसका मतलब, और इस पे 2 माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब ये ग्रुप 6 का कोई एलिमेंट है. नंबर वन. नंबर टू, एंड अ न्यूक्लियन नंबर ऑफ 36. न्यूक्लियन नंबर का मतलब AR जो है वो 36 है. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियाई ऑफ दिस आयन. सो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 18 है, टू माइनस चार्ज के साथ, सो इन न्यूट्रल एटम total number of electrons would be 16, right? So neutral atom की फॉर्म में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, सही है. सो देखो 16 इलेक्ट्रॉन्स थे इनिशियली. जिस जिस जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए. उस 18 इलेक्ट्रॉन की ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई. अब हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर न्यूट्रल फॉर्म में, तो ऑब्वियसली 16 प्रोटॉन्स होंगे, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन नंबर डेफिनेशन, सही है. Examiner is looking for the number of neutrons present in the nuclei of this ion. So हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिटरमिन करने, तो न्यूक्लियन नंबर हमारे पास कितना है 36, और हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं 16. सो आई विल सब्ट्रैक्ट दीस टू, सो आई विल गेट 20. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. या ठीक है. दोबारा से सुनिए. हमारे पास एक एलिमेंट था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो वो एक आयन में कन्वर्ट हो गया, और उस आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 थे. तो अगर 2 माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब न्यूट्रल एटम की फॉर्म में उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है. 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब न्यूट्रल एटम की फॉर्म में 16 प्रोटॉन्स भी होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर की यही डेफिनेशन है, प्रोटॉन नंबर की यही डेफिनेशन है. सो अगर मुझे न्यूट्रॉन डिटरमिन करने होते हैं, तो मैं न्यूक्लियन नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. सो दैट्स सॉर्ट ऑफ लिटिल बिट एनालिटिकल, बट इजी है, मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. The formulae for the two ions are given. आप नोट करें, इन दोनों ions का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है. इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, बिकॉज आइसोटोप्स की ये तो डेफिनेशन है, सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. So first statement, the chemical properties of both ions are same. That's true, as they have same number of electrons, so they have same chemical properties. Right? So first statement, I mean, A statement could be the right option, but let's talk about other options also. Number of electrons in each ion is different. Since atomic number is same number of protons and electrons, which means B statement is incorrect. The number of neutrons in each ion is the same. Since nucleon number is different,
ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो डिफरेंट। मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। ये है 72 माइनस 34 और ये है 74 माइनस 34। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास आएंगे 38 और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 40। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट, the number of protons in each ion is different. Since we have same number, same atomic number, so which means we have same number of protons and electrons also because they have same charge. So this statement is also incorrect and therefore A is going to be the right answer. Which pair of molecule have the same number of electrons in covalent bonds? Same number of electrons examiner is looking for. इसका मतलब आपको इन तमाम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं हर मॉलिक्यूल में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है और क्लोरीन का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। सो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5। सो वन बॉन्ड इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 5 बॉन्ड्स इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल 4 बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब ये भी डिफरेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। अमोनिया में 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, इट आल्सो हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, व्हिच मींस सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज़ एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन में दो बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन में एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Question 7. Chrome alum is a salt that contains 2 different cations and 1 anion. The ions present in chrome alum are potassium this. What is the formula of the salt? तो पहली तो बात ये कि आपके पास 2 कैटाइंस हैं और एक एनाइन है, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए Cr3+ और सल्फेट दोनों को देखें तो ये चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बनेगा Cr2 SO4 टेकन 3, ये बनेगा। अभी मैंने पोटेशियम इंट्रोड्यूस करना है, तो जब मैं पोटेशियम इंट्रोड्यूस करूंगा तो आप जानते हैं कि पोटेशियम हैज अ +1 चार्ज, तो जब ये +1 चार्ज आएगा तो ये 3 के बजाय 2 हो जाएगा। ओके, चार्ज ये 3+ था ना और ये +1 है, तो टोटल 4+ हो गया, 4+ हो गया और ये 2- तो 2+ होगा, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं। राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, याद रखिएगा, दोबारा से देख लीजिए, ये फॉर्मूला मेकिंग है। आप जब क्रोमियम और सल्फेट को कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला ये बनेगा क्रोमियम सल्फेट का। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं एक पोटेशियम आयन इंट्रोड्यूस करूंगा, तो जाहिर सी बात है जब मैं पोटेशियम आयन इंट्रोड्यूस करूंगा तो यहाँ पर +1 है, यहाँ 3+ है, ये हो जाएगा टोटल 4+, सल्फेट होता है 2-, तो जब आप इसको ओवरऑल सम अप करोगे तो ये हो जाएगा 2+ फाइनली। तो इसका मतलब ये जो 3 था क्रोमियम की वजह से ये अब 2 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज टेक्निकली ओवरऑल 2+ हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। P is going to be the right answer. Okay, the table gives some information about barium and chlorine. Use this information only. A student makes 3 statements. There is more than one isotope of chlorine. That's true because chlorine के 2 isotopes होते हैं, एक क्लोरीन का 35 आइसोटोप होता है और एक क्लोरीन का 37 आइसोटोप होता है, और ये दोनों बातें हमने शेयर की हैं आपके साथ क्लास में। और मैंने ये भी बताया कि दोनों 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। सिंस यहाँ रेशियो नहीं पूछा लेकिन पता होना चाहिए, देयर मे बी मोर देन वन आइसोटोप ऑफ बेरियम ऑब्वियसली,
ये भी करेक्ट है। एक से ज्यादा आइसोटोप होते हैं जब भी तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास मिलता है, राइट। द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ बेरियम क्लोराइड इज 208। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। बेरियम का AR है आपके पास 137, ये क्वेश्चन में गिवन है, प्लस क्लोरीन का AR है 35.5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, सो ये आपके पास आ जाएगा 208। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। ओके, नेक्स्ट, which mass of carbon contains same number of atom as 16 gram of sulfur? So first of all, take out the moles of sulfur. 16 divided by 32, you will get 0.1 moles. सही है जी। 16 divided by 32, you will get 0.5 moles. ठीक है। ओके, तो जहां पर हाफ मोल्स आएंगे वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जहां मोल्स सेम होंगे वहां सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेम मोल्स is always equals to same number of atoms. So हमें कार्बन को देखना है। अगर हम 0.5 को डिवाइड कर दें 12 से, हमारे पास मोल्स कितने आएंगे? 0.5 डिवाइडेड बाय 12, सो आई विल गेट 0.041 मोल। सेम नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं आया, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट। 6 को डिवाइड करो 12 से, तो जब 6 को डिवाइड करोगे 12 से, तो आई विल गेट हाउ मच? 0.5 मोल्स। सो ये 0.5 मोल्स आ गए हमारे पास, तो यही हमारा आंसर होगा। राइट आंसर इज बी, क्योंकि जब मोल्स सेम है दोनों के, तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे, राइट। compound X contain carbon, hydrogen and oxygen. It has an MR of 90. Okay, MR is given. That's very, very important. 100 gram of compound X contain 40 gram of carbon, 6.7 gram of hydrogen, और मैं इन दोनों को ऐड करके 100 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा। How many oxygen atoms are there in each molecule of compound X? So that's a lot of calculation. Let me do it first. ये कार्बन है हमारे पास 40, ये हाइड्रोजन है हमारे पास 6.7, और मुझे ऑक्सीजन की बात करनी है, तो ऑक्सीजन के लिए मैं 100 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इन दोनों मास को ऐड करके, विच इज 46.7। सो मैं यहाँ पर कर दूंगा 46.7। सही है जी, वेट मैं चेक कर लूँ कैलकुलेशन। 40 प्लस 6.7 is basically 40 plus 6.7 is basically 46.7. So 100 minus 46.7 is basically 53.3. So ये आ जाएगा आपके पास 53.3। आप इसको डिवाइड कीजिए 16 से टू गेट मोल्स, इसको डिवाइड कीजिए 1 से, इसको डिवाइड कीजिए 12 से, तो 53.3 डिवाइडेड बाय 16 इज गोइंग टू बी 3.33। ये हो जाएगा 6.7 और ये भी हो जाएगा 3.33। आप 3.33 को डिवाइड कर दीजिए सबसे, so empirical formula is going to be CH2O, or empirical formula is CH2O taken N equals to MR is going to be 90, CH2O is basically 30, so 30 N equals to 90। ठीक है, याद रखिएगा कि इस पूरे का मास मैंने 30 डिटरमिन किया है, ये N एज इट इज, ये 90 एज इट इज, सो यहां से 90 डिवाइडेड बाय 30 यू विल गेट N की वैल्यू 3। सो मैं CH2O टेकन 3 लिखूंगा। सो यहां से कार्बन 3 आ जाएंगे, हाइड्रोजन 6 आ जाएंगे, ऑक्सीजन 3 आ जाएंगे। ऑक्सीजन एग्जामिनर पूछ रहे थे कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर in each molecule, so 3 is going to be the right answer। Okay,
क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास। Aqueous copper to sulfate is electrolyzed using copper electrodes. Examiner is saying copper electrode. Okay, so describe the changes that takes place during the electrolysis. Uh, Obviously, anode is made up of copper, and at anode oxidation takes place. So mass of anode obviously decreases. इसका मतलब option A or option B absolutely incorrect. Competition exists between C and D. Mass of cathode obviously increases because copper ions is deposited at cathode in the form of copper metal. So which is why mass of cathode increases. That's what we have done in the class. And since the concentration of copper ion in the electrolyte will remain same, which is why color of the solution will remain and stays the same. And therefore, D is going to be the right answer. Which row describe one advantage and one disadvantage of using a hydrogen oxygen fuel cell to a power road vehicle? Okay. The fuel cell obtains the oxygen from the air. That's true. अगर मैं एयर की लिक्विड एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा, I'll get the oxygen. वो कह रहे हैं हाइड्रोजन हैज टू बी स्टोर्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टैंक. बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन इज एक्सट्रीमली फ्लेमेबल. उसको स्टोर करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग टैंक. So seems like the first statement is right. Option A is correct. Let's talk about B. The fuel cell obtains the oxygen from the air. That's true. The only chemical product causes acid rain. No, because the only chemical product is water, not any acidic gas. And water is not a pollutant, okay? Which is why statement B is incorrect. The fuel cell obtains the oxygen from water. ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के अंदर होता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है ये स्टेटमेंट, ठीक है. बट हाइड्रोजन हैज टू बी स्टोर्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टैंक. दैट्स ट्रू. बट क्योंकि ये जो आप वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, वाटर से तो इलेक्ट्रोलिसिस होती नहीं है, वो तो एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड हो या HCl हो, उससे होती है. वाटर की तो इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं होती, बिकॉज वाटर आयोनाइज ही नहीं होता, ठीक है. तो इसलिए स्टेटमेंट सी जो है वो इनकरेक्ट होगा. नेक्स्ट, द फ्यूल सेल ऑब्टेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. दैट्स अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट. और एसिड रेन भी नहीं बनता, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वाटर फॉर्म होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में, तो ये भी गलत. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13. Which statement about exothermic and endothermic reaction is correct? In an endothermic reaction, energy is used to break bonds. That's true. But no energy is released when bonds form. Oh, by energy is released. That's wrong. ठीक है? Energy release होती है when making the bonds during the chemical reaction. Okay. So first statement incorrect. Option A is incorrect. Next, in an endothermic reaction, energy is released when bonds form. That's true. That statement is true. But more energy is used in breaking the bond. That's true. Because किसी भी endothermic reaction में energy absorbed in bond breaking is higher than the energy released in bond making, right? So this statement is absolutely correct, and therefore B is going to be the right answer. Okay. In exothermic reaction, energy is released. That's true. Both by breaking and forming bonds. That's incorrect. क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मोर एनर्जी इज रिलीज देन अब्सॉर्ब्ड. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. In an exothermic reaction, energy is released when bonds form. That's true. But no energy is needed to break bonds. Energy is needed to break bonds. So this statement is was again incorrect. Two gases react together to produce single product. The rate of the reaction is affected by an increase in pressure. The reaction is catalyzed by platinum. Which row describes one effect on this reaction of increasing pressure and one effect on this reaction of adding platinum? Since platinum is used as a catalyst, which means this catalyst lowers the activation energy. And activation energy is represented by capital E, small a. So activation energy decreases.
right? So statement B and statement D is incorrect now. So when you increase the pressure, obviously rate of reaction increases. So right answer is going to be obviously C. Okay. Question 15. Calcium carbonate reacts with excess dilute hydrochloric acid to form carbon dioxide. The reaction is investigated in two experiments. The rate of the reaction is compared by measuring the volume of carbon dioxide formed over time in each experiment. The two rates are compared by plotting graphs. Okay. Which statement about experiment 1 and 2 is correct? Experiment 1 and 2 both slow down as the reaction proceed. बात तो सही है, बट दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए बात पूछ रहे हैं वो आपसे, बट आप नोट करें इसका इनिशियल रेट ज्यादा है और इसका इनिशियल रेट कम है। इसका मतलब ये मोर स्टीपर कर्व है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और ये लेस स्टीपर है, ऑब्वियसली इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होगा। uh, ये वैसे तो सीम्स लाइक अ करेक्ट ऑप्शन फॉर मी, बिकॉज जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होता है और एक स्टेज ऐसा आता है रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है लाइन, तो सीम्स लाइक अ करेक्ट ऑप्शन। लेकिन आप बाकी भी पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 मस्ट बोथ यूज एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। अगर एसिड सेम कॉन्सेंट्रेशन की एसिड यूज करते हैं हम, तो जाहिर सी बात है फिर रेट ऑफ रिएक्शन की सेम होता है। लेकिन आप नोट करें यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है दोनों का, एक का रेट ज्यादा है एक का रेट कम है, इसका मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन हमने यूज नहीं की थी। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, राइट। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 मस्ट हैव बीन डन एट द सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सेम होता तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम होता, ग्रेडियंट भी सेम होता, इनिशियल रेट भी सेम होता, बट ऐसा नहीं है। हम डिफरेंट टेम्परेचर यूज कर रहे होंगे, विच इज वाई सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एक्सपेरिमेंट 2 यूजेस लार्जर लम्स। अगर लार्ज लम्स है तो स्मॉल सरफेस एरिया है, और जब स्मॉल सरफेस एरिया होता है तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, सही है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, लेकिन एक्सपेरिमेंट 2 में तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है क्योंकि उसका ग्रेडियंट ज्यादा, वो मोर स्टीपर कर्व है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है, and therefore A is going to be the right option. Okay. All right. Question number 16. If calcium carbonate is heated in a closed container, remember, examiner is talking about the closed container, it will decompose forming calcium oxide and carbon dioxide. That's true. Calcium oxide and carbon dioxide recombines to form calcium carbonate. ये क्यों रिकम्बाइन हो रहा है आपस में, क्या वजह है? तो वजह ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये दोनों ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट में, विच इज योर सॉल्ट। After some time, the position is reached where calcium carbonate is decomposing and calcium oxide and carbon dioxide and recombining the same rate. इसका मतलब ये हुआ the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. This position is called equilibrium. So ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है और ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इक्विलिब्रियम के ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, सही है। और सेम रेट कह रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है।
और इक्विलिब्रियम ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर. ओके, ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं होता. नेक्स्ट, विच सेट ऑफ कंडीशंस इज यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें हम कैटलिस्ट जो है वो V2O5 यूज करते हैं. इसका मतलब ये दोनों कैटलिस्ट गलत, इसका मतलब बी और सी गलत. प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर यूज करते हैं. टेम्परेचर जो है वो 450 डिग्री यूज करते हैं. एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. आसान था, मुश्किल तो नहीं था. एनीवे, कॉपर फॉर्म्स रेड ऑक्साइड, दैट इज कॉपर 1 ऑक्साइड. इसका नाम मैंने क्लास में बताया था आपको, कॉपर 1 ऑक्साइड. रेड कलर का होता है ये. एंड अ ब्लैक ऑक्साइड CuO, इसका नाम मैंने क्लास में बताया था कॉपर 2 ऑक्साइड. जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ाए थे तब बताया था, कॉपर 2 ऑक्साइड. In the presence of a catalyst, aqueous hydrogen peroxide decomposes to form water. Okay, the black oxide has copper in a +2 oxidation state. सही है जी. इस कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. कॉपर को x लो, ऑक्सीजन का चार्ज इज -2, होल चार्ज इक्वल्स टू 0 बिकॉज मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, देन x इक्वल्स टू +2. तो मैंने यहाँ +2 लिखा. अच्छा, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए. कॉपर को हम 2x ले लेते हैं, ऑक्सीजन का चार्ज इज -2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +1. ये जो 1 होता है ये बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. यही बात मैंने आपको पढ़ाई है. ठीक है. The black oxide has copper in a +2 oxidation state than in the red oxide. In forming water, hydrogen peroxide is dash. अच्छा, हाइड्रोजन peroxide guys कन्वर्ट हो रहा है वाटर में. सही है. तो अगर मैं यहां से हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करूं तो ये हो जाएगा 2x -2 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू +2. सो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2O2 इज +2. यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं. 2x -2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +1. तो +2 से +1 इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है. तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? रिडक्शन होगा, राइट. So hydrogen peroxide is reduced. और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ +1, तो इसका मतलब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि एग्जामिनर हायर और लोअर कह रहे हैं. सो ये हायर है और कॉपर 1 के अंदर +1 है तो वो लोअर है. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन इन, तो हायर कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है. राइट आंसर. सो हमारे पास ए हो जाएगा इन दिस सिनेरियो. राइट. क्वेश्चन 18 राइट आंसर इज ए. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ये शॉर्ट लिखा हुआ है मैंने, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज रिडक्शन. So hydrogen peroxide is reduced during the reaction. Okay. Question number 19. An organic compound X has a molecular formula C4H8O2 and turns damp blue litmus paper red. अगर blue litmus red हो रहा है इसका मतलब ये एसिड है. This test shows acidic nature. That means this compound must be a carboxylic acid, because all carboxylic acid shows red litmus into blue litmus into red test, right? सो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है बिकॉज ये एस्टर है. क्यों एस्टर है? क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, इसको आप आर बोलोगे, बीच में एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी आर है, ये भी अल्काइल ग्रुप है. तो ये दिस इज एस्टर, राइट. इट इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हिच इज व्हाई ए इज इनकरेक्ट. ये जो बी है ये भी एस्टर है, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके आर हो गए, बीच में एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है.
और मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि आर सेम भी हो सकते हैं, आर डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो ये भी आपका एस्टर है, ये भी गलत है। बाय द वे ये भी आपका एस्टर है और ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि एस्टर के दो जनरल फॉर्मूले होते हैं। पहला, दोनों तरफ आर हो, राइट, जैसे ए में जैसे बी में, और एक तरफ एच हो और एक तरफ आर हो, जस्ट लाइक इन दिस केस ये एच है और ये पूरा का पूरा क्या है, आर। सो ये एच सी ओ ओ आर, तो ये इस जनरल फॉर्मूले को ओबे कर रहा है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, राइट। सो ये ए बी एस्टर, बी बी एस्टर, सी बी एस्टर, विच इज वाई ये गलत। लेकिन आप नोट करें ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, which is why D is going to be the right answer. Okay. Which statement about oxides is correct? All acidic oxides are gases at room temperature. Uh, all acidic oxides, not necessary, because जो SiO2 है ये acidic oxide होता है लेकिन ये solid होता है। सही है, तो ये जो all है ये गलत हो गया क्योंकि SiO2 acidic होता है। फिर वो कह रहे हैं all basic oxides dissolve in water to give alkenes, not necessary, because magnesium oxide जो है वो insoluble in water होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल वाली सिचुएशन जो है ये भी गलत हो गई। फिर वो कह रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड एल्कलीज, ये भी सही है, ये भी सही है। एंड वाटर, ये गलत है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और एल्कली से तो रिएक्शन करते हैं, वाटर से नहीं करते, ये भी गलत। क्यों वाटर से क्यों नहीं करते? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जॉइंट आयनिक होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर से तो रिएक्शन नहीं करता वो। Potassium oxide is a basic oxide. That's true. Right answer is going to be D. 21. A student is provided with suitable apparatus distill water in the following reagents: solid magnesium hydroxide, solid lead carbonate, dilute nitric acid, aqueous sodium chloride, aqueous sodium sulfate. बहुत सारे सॉल्ट्स दिए हैं। देखो ये एल्कली है, ये एसिड है, राइट। तो इसका मतलब ये एल्कली इस एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है, ये कार्बोनेट इस एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड से भी रिएक्शन कर सकता है, ये लेड कार्बोनेट सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कर सकता है। सो देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस इन दिस सिनेरियो जो कि मैं समझता हूँ आपको आने चाहिए। तो वन बाय वन देखते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं हमसे विच सॉल्ट्स कैन स्टूडेंट प्रिपेयर एज प्योर ड्राई सैंपल। इसमें से हम लेड नाइट्रेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेड क्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेड सल्फेट प्रेसिपिटेशन के थ्रू आ जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ड्राई सैंपल के तौर पे। सही है, तो राइट इनकरेक्ट हो जाएगी ऑप्शन है। अच्छा, इसमें बी में देखिएगा, लेड नाइट्रेट प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्रिपेयर कर सकता हूँ, लेड क्लोराइड प्रिपेयर कर सकता हूँ, लेड सल्फेट ओनली ओनली। तो ये तो सही है, सबको कर सकता हूँ, तो इसका मतलब बी इज आंसर। बट सी भी देख लो, लेड नाइट्रेट को प्रिपेयर किया जा सकता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट को प्रिपेयर किया जा सकता है, लेड क्लोराइड को, बट यहाँ पर ओनली कह दिया, तो ओनली नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ लेड सल्फेट भी तो प्रिपेयर हो सकता है ना प्रेसिपिटेशन मेथड के थ्रू। सो ओनली की जो टर्म है वो इनकरेक्ट है यहाँ पर, इसलिए सी को इनकरेक्ट कर देंगे। लेड नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट, बेटा यहाँ पर ये भी सही है, मैग्नीशियम नाइट्रेट भी सही है, बट ओनली की टर्म गलत है, इसलिए क्योंकि इसमें लेड सल्फेट भी है, इसमें लेड क्लोराइड भी है, वो सब मिसिंग है यहाँ पर, तो ये इनकम्प्लीट
ऑप्शन दिया हुआ एग्जामिनर ने, कंप्लीट स्टेटमेंट, इसलिए ये भी गलत. तो आई बिलीव बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस. Question 22. When heated, copper to sulfate crystals reacts as shown. तो ये आपके पास टेक्निकली हाइड्रेटेड क्रिस्टल है. और इस हाइड्रेटेड क्रिस्टल का ब्लू कलर होता है. एंड गाइस ये आपका एनहाइड्रस क्रिस्टल है, बल्कि एनहाइड्रस क्रिस्टल तो नहीं कहेंगे, वाटर रिमूव हो गया है. सो एनहाइड्रस सॉलिड होगा. सॉलिड स्टेट में वो क्या है, और इसका कलर होगा व्हाइट. So examiner is saying when one copper sulfate, which is 2 in appearance, is heated, it forms 3 copper to sulfate, which is 4 in the appearance. So one, when hydrated copper to sulfate, hydrated copper to sulfate. तो इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन ए तो वैसे ही गलत हो गई. तो यहां पर हम लिखेंगे हाइड्रेटेड. copper to sulfate which is dash in appearance, which is blue in appearance. So blue होता है, क्रिस्टलाइन होता है. सो ब्लू होता है और क्रिस्टलाइन होता है. ब्लू होता है और क्रिस्टलाइन होता है, तो ये आ गया. ठीक है. is heated, it forms dash copper sulfate. dash थर्ड में anhydrous copper to sulfate. so ये anhydrous आ गया. which is dash in appearance, which is solid, white solid in appearance. तो white solid यहाँ है, white solid यहाँ है. so right answer is going to be D. सही है. next question. Which formula represents the oxide of element Z in group 2 of the periodic table? Since element is found in group 2 of the periodic table, which means इस element का charge होगा Z2 plus. And oxide has a charge of 2 minus. So if you cross multiply these two, they will cancel out with each other, and the formula is ZO. So ZO means A is going to be the right answer. Okay. Element X is in group 1. Some statement about element X are given. X is not the least dense element in group 1. Okay. X is more reactive than potassium. ठीक है. X has an AR value less than 100. ठीक है. So lithium is incorrect because lithium की reactivity potassium से कम होती है, जबकि वो कह रहा है कि more reactive than potassium. तो इसका मतलब ऑप्शन A and ऑप्शन B both are incorrect. अब जाहिर सी बात है, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम की जो रिएक्टिविटी है वो पोटेशियम से ज्यादा होती है, तो आंसर कुड बी रुबीडियम और सीजियम. बट वो कह रहे हैं कि AR वैल्यू लेस देन 100. इसका मतलब सीजियम भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसका AR 100 से ज्यादा होता है, एंड देयरफॉर C इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट मी चेक द AR ऑफ सीजियम. आई मस्ट से कि वो सीजियम इज फाउंड इन ग्रुप सीजियम. ये देखिए 133 है, तो 100 से ज्यादा है, जबकि 100 और रुबीडियम का कितना है 85. तो इसका मतलब आई वाज राइट कि 100 से कम है. इसका मतलब वो रुबीडियम होगा क्योंकि सीजियम जो है उसका AR 100 से ज्यादा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student makes 3 statement about metals and non-metals. All alloys contain at least one metal. That's true. ठीक है ना. All metals are good thermal and electrical conductors. Again, that's true. All solid non-metals are malleable. भाई metals malleable नहीं होते. ठीक है. सॉलिड नॉन मेटल सिर्फ एक ही हमारे पास, और उसको कहते हैं हम आयोडीन. ठीक है. और आयोडीन जो है वो मेलेबल नहीं होता. ओके. सो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये तो गलत हो गया. तो 1 and 2 ओनली. सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर.
At RTP, iodine is the only non-metal which exists in solid state and it is not malleable. ठीक है? It is a sublime compound. If you remember. 26. Group 1 elements and transition elements are metals. Student X suggests that group 1 elements are above hydrogen in the reactivity series, but that not all transition elements are above hydrogen. बिल्कुल सही बात है, इसलिए क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी और सिल्वर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है और दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं. सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्टूडेंट एक्स का. Student Y suggests that densities of group 1 elements are lower than those of the transition element. ये बात भी बिल्कुल सही है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स. तो अगर उनका रिलेटिव एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी ना, अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट. अगर मास ज्यादा डेंसिटी ज्यादा. सही है. तो which students are correct? Obviously both X and Y are correct. सही है. The equations for 3 reactions are given. These reactions takes place in the extraction of metal. Which row is correct? Reaction in the extraction of aluminum only. Aluminum only. ये extraction होती है. सही है. Reaction in the extraction of iron only. तो आयरन की एक्सट्रैक्शन में ये होता है क्योंकि ये मोल्टन स्लैग बनता है आपके पास, अगर आपको याद हो. So ये 3. Reaction in the extraction of aluminum and iron. ये होगा. सही है, क्योंकि जब आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम कार्बन ऑक्सीजन को रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कोक से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है. फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आयरन 3 ऑक्साइड को रिड्यूस करता है. तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं आयरन की एक्सट्रैक्शन में, जबकि ये रिएक्शन जो है वो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड. इफ यू रिमेंबर, मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है आपको. ओके और ऐसा क्यों है? बिकॉज एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. तो इसका मतलब ये जो कार्बन है इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड दिस ग्रेफाइट can react with oxygen to give carbon dioxide, which means graphite dissolves itself, so we need to replace them periodically. That's what we have explained you in the class. So second B ठीक होगा. The right answer is going to be B. The domestic water supply is treated to make it safe to drink. Which row identifies the treatment and its effect? Chlorination जो है वो microbes को kill करने के लिए use किया जाता है. ठीक है. Filtration जो है वो solids को remove करने के लिए use किया जाता है. सेडिमेंटेशन जो है वो भी सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. ओके. क्वेश्चन नंबर 29. माय गुडनेस. सोडियम फॉस्फेट and ammonium nitrate are both used as fertilizers, which shows the correct percentage by mass of element in each compound that involves plant growth. Percentage of the element in sodium phosphate that improves plant growth. Oh my goodness. NPK फर्टिलाइजर होता है तो मुझे सोडियम भी देखना है यहाँ से और मुझे फॉस्फोरस भी देखना है. यहाँ से नाइट्रोजन देखूंगा मैं सिर्फ. So first of all, take out the mass percentage by mass of nitrogen in ammonium nitrate. So we have 2 nitrogen atoms, so 14 times 2. The MR of ammonium nitrate is how much? Ammonium nitrate 14 and 4 18. 28 plus 4 plus 16 times 3. 28 plus 4 plus 16 times 3. 80 into 100. So ये हो जाएगा 28 divided by answer into 100 is going to be 35%. So in ammonium nitrate, percentage by mass of nitrogen is 35%. तो 35 यहाँ है, 35 यहाँ है. इसका मतलब A भी गलत और इसका मतलब C भी incorrect.
नाउ कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड डी, उसके लिए मुझे सोडियम फॉस्फेट की वर्किंग करनी है. लेट मी टेक आउट द एमआर फर्स्ट. Sodium is 23 times 3 plus phosphorus is 31 plus 16 times 4 is going to be 164. So 164 is the MR of sodium phosphate. Percentage by mass of sodium देखूंगा मैं. NPK. तो सोडियम तो नहीं देखूंगा, फॉस्फोरस देखूंगा. सही है, बिकॉज एनपीके फर्टिलाइजर होता है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो मैं यहाँ से फॉस्फोरस देखूंगा. तो 31 times 1 divided by 164 into 100. So 31 divided by 164 into 100 is going to be 18.9%. 18.9% means 19%. So 19%. So right answer is going to be B. 3 processes are shown: decomposition of vegetation, emission from a car engine, photosynthesis. Which row shows a gas produced in each process? Photosynthesis में oxygen gas is produced. So process 3 में oxygen gas है. जो emission from a car engine है उसमें oxides of nitrogen भी होते हैं and oxides of carbon भी होता है. एग्जामिनर ने ऑप्शन में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दिए हुए हैं, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे. इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत. ठीक है. प्रोसेस 1, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन जब भी होती है मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड. ये मैंने आपको पोल्यूटेंट्स के चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी वेजिटेशन होती है मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, राइट. सो मीथेन गैस यहाँ है, मीथेन गैस यहाँ है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. Which compound is not alkane? Alkene, alcohol or carboxylic acid. By the way, this is alcohol because OH group is present. By the way, this is alkane because it is saturated hydrocarbon. So ये भी गलत, ये भी गलत. And this is basically a double bond between the carbon atom, which indicates it is an alkene, right? So right answer is going to be an A, because वो ना तो एल्केन है, ना वो एल्कीन है, ना वो एल्कोहल है, और ना ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. इट इज डिफरेंट. ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. बाय द वे, जब आप ए लेवल्स में जाएंगे तो इस फंक्शनल ग्रुप को पढ़ लेंगे. मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, कुछ बच्चे डिटेल मांगते हैं. इसको कहते हैं कीटोन. जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स आर द क्लास ऑफ कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल इसी तरह से कीटोन भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है. बट सिंस वी हैव डन दिस फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज ये सब आपने पढ़े हैं सिलेबस में. ठीक है. और वो आपसे पूछ भी रहे नॉट. ठीक. So 31 is A, I believe. 32 पे चलते हैं. Alkene can be produced by cracking of alkanes such as decane. Which equation shows the cracking of decane to produce two different alkenes? ये याद रखिएगा, two different alkenes कह रहे हैं, and at least one other product. Two different alkenes. So ये ऑप्शन इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एल्केन आ गया है. सही है. और दूसरी बात ये, यहाँ पर 3 moles ऑफ एल्कीन्स हैं. उसने कहा 2 डिफरेंट एल्कीन्स, तो टेक्निकली यहाँ 3 एल्कीन्स हैं, इसलिए भी ये गलत हो जाएगा. और
अच्छा, एक मिनट, होल्ड ऑन। ये तो मैंने बता दिया आपको, इसको एक और तरीके से भी तो देख सकते हैं। होल्ड ऑन। कितने कार्बन है यार? 10, 2 टाइम्स 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11। सो यहाँ टोटल 11 कार्बन एटम्स है। सो आप इस तरह से कर लें कि ये टोटल कार्बन एटम्स 11, जबकि यहाँ कितने हैं? 10। तो ये वैसे ही गलत हो गया, बिकॉज क्रैकिंग में नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम बैलेंस होने चाहिए। चलें इसको देखते हैं। 2 टाइम्स 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12। सो यहाँ पर भी टोटल कार्बन एटम्स 12 आ रहे हैं। ये भी गलत। जब कार्बन एटम्स बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब इक्वेशन गलत है। नेक्स्ट, C10H22, ये 2 मोल्स और ये 1 मोल। वो कह रहे हैं 2 डिफरेंट एल्कीन्स, ये सेम एल्कीन है। तो इसलिए ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। आप नोट करें, ये 2 डिफरेंट एल्कीन्स हैं और एक अदर प्रोडक्ट कह रहा है। कार्बन चेक करते हैं। 2 टाइम्स 2 4, 4 प्लस 6 10। कार्बन 10 है, हाइड्रोजन 22 है, तो राइट आंसर इज करेक्ट। ओके, डी इज करेक्ट। Alkenes undergoes addition reactions with bromine to form dibromoalkane. Which statement is correct? इथीन एंड ब्रोमीन का जब रिएक्शन करते हैं तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनता है। तो ये स्टेटमेंट गलत, क्योंकि ये 1,2 डैश डाई ब्रोमो इथेन बनता है। सही है। ये देखो, एक ब्रोमीन आपने यहां अटैच किया, एक ब्रोमीन आपने यहां अटैच किया, सो ये बन जाएगा 1,2 डाइब्रोमो। एक ही कार्बन के साथ दोनों ब्रोमीन अटैच नहीं है, इसलिए मैं 1,1 डैश डाइब्रोमो नहीं लिख सकता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, प्रोपीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट टू प्रोड्यूस 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। भाई ये हो जाएगा 1 2 3, एक ब्रोमीन यहां लगाओ, एक ब्रोमीन यहां लगाओ। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास, अगर आपको याद है नोट्स। ठीक है, सो ये टेक्निकली 1,2 बन रहा है। ठीक है, तो ये 1,2 बन रहा है, ये 1,3 नहीं हो सकता, तो ये भी गलत, बिकॉज इट हैज टू बी 1,2 डैश डाइब्रोमो प्रोपेन। तो ये भी गलत। नेक्स्ट, ब्यूटूइन एंड ब्रोमीन रिएक्ट टू प्रोड्यूस 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। आई बिलीव ये भी गलत ही है, बिकॉज ये 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन होगा। 2,3 सही है, तो सी भी गलत। राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। वाई? बिकॉज ब्यूट 1 इन को जब तुम ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे तो 1,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, एंड दैट्स करेक्ट। ये देखो, ये एक ब्रोमीन आया, ये दूसरा ब्रोमीन आया, सही है। सो टेक्निकली ये 1,2 डैश डाइब्रोमो ब्यूटेन बन रहा है, so which is why D is going to be the right answer. Okay, how many moles of oxygen are required for the complete combustion of 2 moles of ethanol? My goodness, we have done this equation in class. So ethanol is C2H5OH plus oxygen convert होगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। लेट्स बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ कितने मोल्स हैं भैया आपके पास? 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल कह रहा है ना, तो यहाँ लगाइए 2। टोटल कार्बन एटम्स बताइए कितने हो गए? 4। सो यहाँ लगाइए 4। टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? 5 प्लस 1 6, 6 टाइम्स 2 12। तो यहाँ 6 लगाइए। यहाँ टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 4 टाइम्स 2 8, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 इज गोइंग टू बी 14। 14, तो यहाँ 6 लगाइए, बिकॉज 6 टाइम्स 2 इज 12, 12 और ये 2 ऑक्सीजन भी हैं, बस 14 हो जाएंगे। तो 6 moles of oxygen are required for to complete combustion of 2 moles of ethanol, right? My goodness, 2 reactions are shown. ये आपका एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट,
तो हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड पे, ओ माय गुडनेस, CH2CH। बाय द वे गाइस, एग्जामिनर के एंड से मिस्टेक हुई है, ये गलत लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। इट इज एन इनकरेक्ट स्ट्रक्चर बिकॉज इस कार्बन के नंबर ऑफ बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं हो रहे। ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ, ओपन करता हूं मैं, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2, ओके, और ये हो जाएगा OH। सो ये एग्जामिनर के एंड से मिस्टेक हो गई है। एग्जामिनर हमेशा हर वक्त ठीक नहीं होते, वो मिस्टेक्स कर सकते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि एग्जामिनर के एंड से मिस्टेक हो गई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ एग्जामिनर के एंड से मिस्टेक बिकॉज इस कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो गए विच इज नॉट पॉसिबल, और इस कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं है विच इज वाई ये भी। तो टेक्निकली ये स्ट्रक्चर जो एग्जामिनर ने दिया ये गलत है। मैं एज एन एग्जामिनर आपको बताता हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे ठीक होगा। ये CH2 नहीं है, इट हैज टू बी CH। ये CH2 एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, डबल बॉन्ड टेक्निकली यहाँ होगा। सही है, डबल बॉन्ड ये ऐसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2OH, दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये है एक्चुअल मॉलिक्यूल जो कि एग्जामिनर के एंड से गलती हो गई, उन्होंने गलती कर दी, ये गलत है, ये ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि इस कार्बन के 5 कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5, और इस कार्बन के सिर्फ 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं 4 के बजाय, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत। और गलती क्या है, गलती ये है कि एग्जामिनर ने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया है, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी, और प्रोडक्ट कुछ ऐसी मिलेगी। ये CH2 एज इट इज, एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, CH2OH एज इट इज। ठीक है, एक H आपने यहां ऐड किया और एक H आपने यहां ऐड किया। ठीक है, से ये आपका हो गया, अगर आप नोट करें, प्रोपेन 1 ओल हो गया। ठीक, अब अगर आप इस प्रोपेन 1 ओल को, जिसको उसने कंपाउंड X का नाम दिया हुआ है, ये कंपाउंड X है, अगर आप इस प्रोपेन 1 ओल को रिएक्शन करवाएं KMnO4 से, तो क्या होगा, ये मैंने क्लास में करवाया है आपको कि अल्कोहल को जब हम KMnO4 से रिएक्शन करवाते हैं, और तो ये जो आपके पास CH2OH है, ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बना। सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है विच इज कंपाउंड Y। सही है, और प्रोपेन 1 ओल आपका बना है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। माय गुडनेस, एग्जामिनर के एंड से भी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 36, a section of the structure of a protein is shown, how many amino acid monomer molecules have been used to make this section of the structure। मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूं, जितने आपको अमाइड लिंकेज के बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं सबको ब्रेक कीजिए। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। सही है, सो एक अमीनो एसिड आपका ये हो गया, ये सेकंड अमीनो एसिड है, ये थर्ड अमीनो एसिड है, ये फोर्थ अमीनो एसिड है। सो टेक्निकली कितने अमीनो एसिड जो हैं वो आपके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 4 अमीनो एसिड रिएक्शन कर रहे हैं, विच इज वाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया, ये आपका सेकेंड अमीनो एसिड हो गया, ये आपका थर्ड अमीनो एसिड हो गया, और ये आपका फोर्थ अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, which piece of apparatus is used to measure exactly 27.3 cm cube of sulfur। so पहली बात exactly बोला है, इसका मतलब needs to be an accurate measurement।
सही है। मैं कंडेंसर यूज ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उस पर ग्रेजुएशन मार्क नहीं होता। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इस पर कोई ग्रेजुएशन मार्क भी नहीं होता, इसलिए आप 27.3 मेजर नहीं कर सकते। सो नो ग्रेजुएशन मार्क एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ये भी गलत, ये भी गलत। क्योंकि हम मेजरिंग सिलेंडर और ब्यूरेट में से ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो ब्यूरेट करेगा, which is why A is going to be the right answer because we need an accurate volume, because वो exactly कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। So 37 is A, 38 की बात करते हैं। A student titrates aqueous sodium hydroxide with 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid. The titration results are used to calculate the concentration of the aqueous sodium hydroxide. Which row is correct? So apparatus to measure the volume of hydrochloric acid. Burette, obviously. Hydrochloric acid has to be in the burette क्योंकि इसकी known concentration है। known concentration है और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने मेजर करना है, तो इसका मतलब वो ब्यूरेट में होना चाहिए, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका कॉनिकल फ्लास्क में होना चाहिए। और जो भी चीज कॉनिकल फ्लास्क में होती है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के थ्रू जो है वो मेजर करते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक पिपेट ये है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, ठीक। 39, a mixture of 4 colored dyes, by the way इसको फोकस करो, 4 colored dyes कह रहा है, ठीक है, is analyzed by chromatography, the result is shown। आप नोट करो ये आपका पहला, second and third, so 3 spots are visible, सही है। वो आपसे कह रहे हैं कि which change allows the 4 colored dyes to seen separately। oh my god, so वो कह रहे हैं आपसे 4 colored dyes, स्पॉट्स कितने मिले हैं आपको? 3। इसका मतलब 4 डाई थे, उसमें से 3 स्पॉट मिले, इसका मतलब एक डाई ऐसा है जो कि सेपरेट नहीं हुआ, तो 4 में से 3 मिल गए, 1 डाई लेफ्ट। तो उस 1 डाई को विजिबल करने के लिए आई एम गोना डू chromatography again, but by using different solvent। That's called two-way chromatography also, which is why C is going to be the right answer। That's very very technical बेटा, आसान नहीं है ये चीज, two-way chromatography कहते हैं इसको, also called two-way chromatography। two-way chromatography उस वक्त यूज की जाती है जब सॉल्यूट कोई ना कोई सेपरेट ना हो, और उसके लिए हम फिर डिफरेंट सॉल्वेंट भी यूज करें, ठीक है। यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट। ओके, तो 39C। 40 लास्ट क्वेश्चन। An aqueous solution contain cation of metal X. A precipitate forms when a few drops of aqueous sodium hydroxide are added to the solution. The precipitate dissolves in aqueous sodium hydroxide. What is the possible identity of metal X? So examiner is looking for the metal X. So इसका मतलब अमोनियम तो नहीं हो सकता, राइट। सो एल्यूमिनियम के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे और वो डिसॉल्व हो जाएगा, जिंक के भी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे, वो डिसॉल्व हो जाएगा, और अमोनियम नहीं होगा, सही है। तो अमोनियम नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, तो बी भी गलत, डी भी गलत, और जाहिर सी बात है ये भी गलत क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं, इसका मतलब सी भी गलत। तो जब ए, सी, बी, डी सब गलत, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए, क्योंकि तीनों चेक्स आ रहे हैं उसके अंदर। अमोनियम आयन टेस्ट नहीं हो सकेगा क्योंकि अमोनियम आयन के प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, ओके। तो राइट आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच गाइस।